good morning, ladies and gentlemen. How are we all feeling today? Are we all charged up? Had a hefty breakfast? All ready for the day? How's the Josh? High? Should be higher, right? So many people in the front. I see so many suited, booted, so well-dressed gentlemen that are sitting, and the lady there. So, how's the Josh? High? All right, so let's start this day on a high note. Yesterday was very robust, informative, educational, insightfully illuminating day that we had and learned so much as far as the EV industry is concerned. And I'm hoping and expecting and ensuring that today is going to be no less than that. In fact, better than yesterday. So, starting with that, I am your host, Manu. You can call me Manu. And this is the second edition of the Battery Show India 2024. And we are doing very, very well given the fact that it is only the second edition. REI, as you all know, Renewable Energy India is a very well-known brand. The Battery Show India is a new brand and this is only the second edition. But according to that, we are achieving really great standards and I'm very proud to say that we are doing exceptionally well in the field. This show is by Informa Markets, and without further ado, I'm going to start with our first session, which is powered by NHEV. The topic of discussion is pathways to build a resilient green infra for clean mobility with renewable powered NHEV e-highways, which sounds very, very interesting to me. And I'm looking so forward to it, to hear the views of all the ladies and gentlemen involved in the panel. As we journey towards a sustainable future, our transportation system is at a crossroads. We can choose to continue down the path of pollution and congestion, or we can pave the way for a cleaner, greener tomorrow by incorporating nature into our infrastructure, promoting electric vehicles and designing cities that prioritize people over cars. We can create a transportation system that not only reduces emissions, but also enriches our lives. Let's work together to build a future where our commute is a breath of fresh air, not a source of stress and pollution. On that note, I would like to call upon our esteemed moderator, Mr. Abhijit Sinha, who's a technocrat, Ease of Doing Business Program Director, National Highways for Electric Vehicles, President CPOs of India, and ex-CAG member, welcoming Mr. Abhijit Sinha, ladies and gentlemen. Please give a huge round of applause for the gentleman. The next panelist that I would like to call upon stage is Mr. Pradeep Kumar Verma, Managing Director, Accord Transformer and Switchgear Private Limited. The next panelist that I would like to call upon stage is Dr. S.K. Saroj, Chairman, International Federation of Electric Vehicle Association. Before we move forward, I would also like to give a brief introduction about Mr. Pradeep Kumar Verma. He's the Managing Director of Accord Transformer and Switchgear Private Limited. I think I did not miss that, did I, sir? I did? Okay. So I think we've covered that now. Okay, moving on to our next panelist, I would like to invite Mr. Saurabh Verma, Vice President, Sameen Techmins, India. And last but definitely not the least, Mr. Bharat Goyal, CEO, Concurrent. Without any further delay, I would like to hand over the baton of the discussion to our esteemed moderator, Mr. Abhijit Sinha. Sir, the stage is all yours. Thank you so much. आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। स्टेज पे हमारे साथ
गोयल जी, एसके सरोज जी और स्विच गियर ट्रांसफार्मर एटीएस के सुधीर जी, सौरभ कुमार, सबको विशेष बधाई। नवरात्रि इस बार ई शक्ति और नेशनल हाईवे 9 अलग अलग दुर्गा के रूपों में एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एनर्जी, पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी के कई वर्जन्स लेकर आ रही है। उम्मीद है आप सबको ये नवरात्रि और ये दुर्गा पूजा वो शक्ति प्रदान करे जिस शक्ति की ज़रूरत हम सबको इस पॉल्यूशन और इस महामारी जिसको हमने कुछ समय पहले देखा है कोविड में, उससे लड़ने की ताकत प्रदान करे। वो लोग जो मुझे यहाँ इस हॉल में बैठकर सुन रहे हैं और ऑनलाइन हमारे दर्शकों को जो यूट्यूब और ऑनलाइन चैनल्स पे हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी नवरात्रों की विशेष बधाई। जो लोग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के पहले या इस बातचीत को शुरू करने से पहले एक नोशन और एक ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट देते हैं, खासकर उनके ऊपर उस दिशा को निर्धारित करने का प्रेशर, दिशा को निर्धारित करने का दबाव होता है कि आप सही दिशा में उस डिस्कशन को ले जाएं जिसके ऊपर बातचीत की जानी है। आज टू बिल्ड एन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रेजिलियंस, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे देश को अंदर से बाहर तक पूछ रहा है कि आप जिस दिशा में और जिस स्पीड से प्रगति कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप अनदर चाइना, अनदर अमेरिका नहीं बनेंगे। मेरी इकोनॉमी को अगर आप उसके सफ़र को देखें तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज जो है, उसे करीब 65 से 65 to 67 ईयर्स लगे 1 ट्रिलियन बनने में। अगले 8 साल लगे उसको 2 ट्रिलियन बनने में, फिर 5 साल लगे उनको 3 ट्रिलियन बनने में, और अब अगले 3 सालों के अंदर वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। विकसित भारत के इस कॉन्सेप्ट को, जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हैं, जिस तरह का इकोनॉमिक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इंडिया ने पिछले 10 सालों में दिखाया है, उसका सिर्फ एक लक्ष्य नहीं हो सकता है, उसके कई लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक पैरामीटर को बोलूं तो आप सब उससे अग्री करेंगे कि प्रत्येक ईयर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की क्षमता हम विकसित कर रहे हैं। और यदि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हर साल आपको जोड़नी है, तो जरूरी है कि आप उस $1 ट्रिलियन के लिए दो बहुत बड़े आयामों के ऊपर, दो बहुत बड़े कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करना शुरू करें। एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिस पे हमारी एक्सपेंडिचर, मैं सिर्फ लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो 14 to 20% इंडिया में। ये लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर 14 से 20% ऑफ द जीडीपी एक्सपेंडिचर होने का मतलब, आप किसी भी उस देश से जिसका एक्सपेंडिचर सिंगल डिजिट में है लॉजिस्टिक के ऊपर, 7, 8, 9% का है, आप प्रोडक्ट कॉस्ट में मुकाबला नहीं कर सकते। और आपकी लड़ाई किससे है? पिछले 10 सालों में आपने
4 बड़े राष्ट्रों को, रशिया, इटली, फ्रांस और यूके को इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया। 3 देश आपके आगे खड़े हैं, जापान, अमेरिका एंड चाइना, यूएस एंड चाइना। जर्मनी की मैं बात नहीं करता क्योंकि जर्मनी 4थे नंबर पर है और हम 5वें नंबर पे हैं। आपने जब रशिया, इटली, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ा होगा तो अखबार में खबर पड़ी होगी कि आज हमारी इकोनॉमी रशिया, यूके और फ्रांस से बड़ी हो गई। इतनी सी ही खबर आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का इस वक्त उस कैलिबर को इस्तेमाल करने का समय, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, उस सही समय को पहचानने की जो जरूरत है, उसमें रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्ड बाय ग्रीन, स्टोर्ड बाय एनर्जीज, ऑल इक्विपमेंट्स इन एन मोड कि हमारा जो हेजिटेंस कल्चर है, जो रिलक्टेंस है बैटरी को प्रेमाइसिस के अंदर नहीं रखने का, लार्ज कॉम्पैक्ट सीएसएस को प्रेमाइसिस के अंदर नहीं रखने का, अभी भी इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में ये होता है। उस हेजिटेंस से निकलना जरूरी है। और 2 बड़ी बातें जो मैं यहां कहना चाहता हूं, मेरी विश लिस्ट मान सकते हैं आप। इंडिया इस समय एक साथ बहुत सारे मिशंस पर काम कर रहा है। वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में भारत का नेतृत्व हो, या 100% डिजिटाइजेशन 2070 तक नेट जीरो डीकार्बोनाइजेशन का हो, या कंप्लीट जियो स्पेशलाइजेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 4.0 का हो, या फिर एजुकेशन पॉलिसी का हो। ये सारे मिशंस एक साथ चल रहे हैं और इन सारे मिशंस के बीच में जो सबसे बड़ा पीस ऑफ इकोनॉमिक बूस्ट है वो या तो जीडीपी कॉस्ट रिडक्शन से आता है, जो कि 14% से 9% पर लाना नेशनल एम्बिशन बन चुका है, या फिर आपके ऑयल इंपोर्ट बिल को नीचे करने से लाता है। ऑयल की मिडिल ईस्ट में क्या हालत है आप सब जानते हैं। आप सब खबरों में प्रतिदिन इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं, यूक्रेन एंड रशिया का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं। किसी भी दिन किसी भी कारण से क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जा सकती है और आप जो कुछ भी अर्न करते हैं बाकी के सेक्टर से, वो आपको क्रूड ऑयल मार्केट को पे करना पड़ सकता है। सो आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंस, आपकी एनर्जी लिबर्टी काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर के रेजिलेंस पे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंटीग्रेशन, सोलर इंटीग्रेशन, विंड इंटीग्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और यदि कर पाएगा तो एडॉप्टेबिलिटी का पेस क्या होगा। हम ये काम 5 सालों में भी कर सकते हैं और अगले 15-20 सालों में भी कर सकते हैं। 2 छोटी बातें जो की नोट्स हो सकती हैं, की डॉट्स हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये वो बातें हैं जो आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थॉट मंथन के लिए देकर जाएंगी। हमारे पास इस वक्त नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल एम्बिशन को, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक के एम्बिशन को पूरा करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। जितना इलेक्ट्रिफिकेशन आपने पिछले 70 सालों में किया है, 75 साल का आपका देश है, 1947 में आप आजाद हुए हैं, अगले 1947 से 1950-60 तक आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहे, 60 से 85 तक आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बने, 85 से 2000 तक आप कंप्यूटर की इकोनॉमी बनने लगे, 2000 से 2022 तक आप टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी बनने लगे, और 2022 में आपने वो रास्ता चुना कि देश अब 100 साल का होने वाला है। और आप सब में से कई लोगों ने, सब लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से एक ऐसे व्यक्ति को, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, चुनकर प्रधानमंत्री बनाकर भेज दिया, जिन्होंने 2022 में आपको अमृत काल की और आजादी के अमृत महोत्सव की दिशा दी। और सिर्फ दिशा नहीं दी, अगले 2 साल तक, 2022 से 2024 तक
उसके ऊपर सघन रूप से ग्राउंड पर काम करके भी दिखाया। आज आप 6.8 ट्रिलियन डॉलर 6.8 जीडीपी रेट के ग्रोथ पर बढ़ रहे हैं। आपकी इकोनॉमी अगर अगले 20 सालों तक 22 सालों तक इसी पेस पर बिना किसी इंटरनेशनल और एक्सटर्नल इंपैक्ट के बढ़ती रहती है तो आप 35 से 38 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 तक बन जाएंगे। और ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। आपने सुना होगा विकसित भारत पिछले 2024 के चुनाव में, ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर देश इस वक्त एक नेशनल मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहा है। हर एक साल, हर एक डिकेड में आपको 2 ट्रिलियन डॉलर की ग्रीन इकोनॉमी अपनी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जोड़नी है। और इसके लिए लगातार क्लाइमेट फाइनेंसिंग से लेकर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, सोलर, न्यूक्लियर रिएक्टर, विंड पावर, हर क्षेत्र में आपके किए गए प्रयास देश को सक्षम बनाएंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेरी उम्मीद आपसे यह है कि आप इस ट्रांजिशन को मेरे इकोनॉमिक चश्मे से एक बार देखकर देखें। 70 सालों में आपने गांवों का और इतने बड़े देश का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के आप ऊपर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको आने वाले समय में गाड़ियों को चार्ज करने के लिए डीसी चार्जर की जरूरत होगी। और ये डीसी चार्जर आप उन छोटे पोर्ट्स पर जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं और टीवी चार्ज करते हैं नहीं चला सकते। मतलब साफ है कि आपको पिछले 70 सालों में किए गए कामों को दोबारा करना पड़ेगा। डीसी चार्ज के लेवल की इलेक्ट्रिफिकेशन वोल्टेज एम्पियर आपको दोबारा गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एम्बिशन यह कहता है कि हम 2030 तक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। आपका एम्बिशन यह कहता है कि 40, 50, 60 हर 10 साल के बाद आपको 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इसमें जोड़नी है। मतलब करीब एक साल में आप 235 से 255 बिलियन डॉलर इस ग्रीन इकोनॉमी में जोड़ रहे होंगे 2030 से 2035 तक। और 2035 से 2040 तक 355 से 365 बिलियन डॉलर इकोनॉमी इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फाइनेंसिंग में जोड़ रहे होंगे। ये तभी संभव है जब हम हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, हर एक क्षेत्र की सघनता से जांच करें। वो कौन सा पावर ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जनरेटर पावर्ड हैं, सोलर पावर्ड हैं, विंड पावर्ड हैं, माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर्ड हैं, हाइडल पावर्ड हैं, इनकी ऑडिटिंग करें। और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया गया प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचता कैसे है, डीजल ट्रक्स पे जाता है, कैसे जाता है, उसको ऑडिट करें। हर एक बिजनेस के लिए इस वक्त खुद को ऑडिट करना, खासकर मोबिलिटी एंड पावर सोर्स के माध्यम से, हमारी नेसेसिटी बन चुका है। और जब आप इस ऑडिट को पूरा करते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। आप पूरे देश का इलेक्ट्रिफिकेशन जब करने जाएंगे वापस, तो आपके पास 2 रास्ते मिलेंगे। और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए, आप थर्मल पावर, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते। कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा हो सकता है। लुकिंग एट द सिनेरियो, यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन इज टू गो वायरलेस। और ये वायरलेस इसलिए कहता हूं क्योंकि वायरलेस का मतलब है सोलर, सूरज से आप तक कोई वायर नहीं आती है। एक इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड चार्जर एंटिटी खुद को डायरेक्ट सोलर से चार्ज कर सकता है, बैटरी स्टोरेज रख सकता है और दिन और रात अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जी यूटिलिटी बना सकता है। दूसरा वायरलेस है विंड। विंड में भी आपको जहां भी आप विंड मिल्स, विंड विंग्स लगाते हैं, वहां से आप थोड़े जगह के लिए वायर करते हैं।
केबलिंग करते हैं। और तीसरा वायरलेस है जो पूरी तरह वायरलेस नहीं है, हाइडल और माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर। इन दोनों के ऊपर अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि इनका कैपिटल बहुत ज्यादा है। लेकिन विंड और सोलर दो ऐसे लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट हैं जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और ये रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल हाईवे से लेकर नेशनल एम्बिशन क्रिएट करे प्रत्येक सेक्टर में जाकर, ये भारत की इस वक्त जरूरत है। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमसे हमारी आगे आने वाली जनरेशन एक सवाल जरूर पूछेगी कि जब आप अंधाधुंध गाड़ियां बना रहे थे, सड़कों पर चला रहे थे, आपकी धरती तापमान के आखिरी पायदान पर खड़ी थी ग्लोबल वार्मिंग के, तब आपको ये इकोनॉमी जो डीजल और पेट्रोल से चलती है, इससे बाहर आने का रास्ता नहीं सूझा। आप जिस शहर में खड़े हैं दिल्ली में, यहां की जो AQI है, आप एक दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर धुआं प्रतिदिन पीते हैं। सो दो ही बातें हो सकती है, या तो दिल्ली के लोग म्यूटेट कर गए हैं जो उनको कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कभी भी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। इस दिवाली या अगली दिवाली आपकी शिकायत हो सकती है कि आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और खासकर बच्चों को जो अभी ही करीब 3 बच्चे 10 बच्चों में से जो दिल्ली में पैदा होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ की शिकायत रहती है। सो आने वाली पीढ़ी को आपका जवाब और उस जवाब के लिए आपका काम, इसको करने का यही समय है, और मैं भी पूरी तरह यह मानता हूं कि सही समय है। आप वो अर्थव्यवस्था हो जो प्रति मिनट करीब 30 लोगों को एक गांव के सेटलमेंट से उठाकर शहर के सेटलमेंट में ट्रांजिशन कर रहे हो। जी हां, हर मिनट 30 लोग एक गांव से उठकर, हर मिनट इस देश में 30 लोग एक गांव से उठकर एक अर्बन आउटफिट पे माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइज कर रहे हैं। और ये स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन भारत की और मानवता की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन है। जो लोग आ रहे हैं उनको पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, घर चाहिए, स्कूल चाहिए, मकान चाहिए, और इन सब के लिए आपको पावर चाहिए। आप वो पावर बना रहे हैं, आप वो पावर स्टोर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी डिजाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रबुद्ध, जानकार, एक्सपर्ट्स जो यहां मेरे साथ हैं, वो इस इंटेंट को समझेंगे और इसके लिए करेक्ट कंटेंट बनाएंगे। एक्सटेंट आने वाला समय, आपकी मेहनत, हमारी पॉलिसीज डिसाइड करेंगी कि हम कहां तक पहुंचते हैं। और इस राइट इंटेंट, कंटेंट एंड एक्सटेंट के साथ मैं आप सबको उस प्रोग्राम से जुड़ने का, उस इनिशिएटिव से जुड़ने का मौका, प्रिविलेज और आमंत्रण देता हूं, जिसका नाम नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो मोबिलिटी को पूरी तरह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के ऊपर ले जा रहा है। आगे आने वाले समय में हमारी डिस्कशन में आप प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ जान सकेंगे, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी, सोलर और विंड के ऊपर हमारी रेजिलियंस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस बात को आपको अपने जहन में लेकर साथ चलना होगा। और इस चैलेंज से निपटने के लिए आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूं बहुत ही एक्सपर्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन के जानकार, जिन्होंने नेशनल हाईवे ईवी में काफ़ी हद तक उसके इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर को पूरा करने में हमारी मदद की। भरत वर्किंग ग्रुप का हिस्सा भी हैं, पार्टनर भी हैं और इंजीनियर भी हैं मेरे ख्याल से। भरत, आपका इंट्रोडक्शन ऑल्सो विथ अ फॉलो अप क्वेश्चन कि रिजिलियंस हम जो एक माइंडसेट में देखते हैं, जो इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में होता है कि प्रेमाइसिस के अंदर बैटरी या प्रेमाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा सेटअप, अभी भी लोग थोड़े हिचकते हैं उसको रखने में, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर।
इसका आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ जरूर एड्रेस करें। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात से शुरुआत करनी चाहिए सर। मेरे ख्याल से आपने आज हिंदी के ऊपर जोर दिया है सिन्हा साहब ने, सो आई वुड से सुप्रभात। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतने सारे स्टॉल्स, इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतने लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है जो हमारे देश ने ली है। मेरा नाम भरत गोयल है। आई एम द CEO ऑफ कॉन्करेंट कंट्रोल सिस्टम्स और हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस, LT पैनल्स, HT पैनल्स, अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर्स के बिजनेस में हैं। एंड ऑलमोस्ट 1000 कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल करके कमीशन कर चुके हैं, जिसमें 33 kV 11 kV दोनों है एंड ऑलमोस्ट 7 लाख kVA से ज़्यादा कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस की इंस्टॉलेशन है हमारी। सो आपने जो सवाल किया था सर, आई थिंक इस अनाउंसमेंट की वेट करनी पड़ेगी हमें। नहीं, आप बोलते रहो, नो प्रॉब्लम। कि व्हाट अबाउट जो लोगों में जो हिचक है बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए अपनी प्रेमाइसेस में इंस्टॉल करने के लिए। सो सर अगर आज से हम कुछ साल पहले जाएं, आई थिंक कुछ दशक पहले जाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने घर में लाने में लोगों में हिचक थी। उससे भी डर लगता था कि बिजली की तार अगर आएगी तो शायद कोई झटका लग के कोई आदमी की हार्म हो सकता है। फिर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां आई, उनमें भी एक्सीडेंट्स कुछ हुए, लोगों से मिसहैंडलिंग हुई जिसकी वजह से उसमें आग लगी। तो उसका भी एक डर था 1940-50 के टाइम पर। 2000 के आसपास हमारे देश में CNG आई, बहुत सारी गाड़ियों में आग लगी, बहुत सारा डर बैठा कि CNG की गाड़ी तो कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है। 10 साल पहले EV आई, शुरू में कुछ एक्सीडेंट्स हुए, तो उसका भी एक डर था। ये जो डर है ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का है। टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली अ गुड टेक्नोलॉजी और वो टेक्नोलॉजी टाइम टेस्टेड है, टाइप टेस्टेड है, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में। इंडिया में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा जल्दी में हैं। तो हम उसके सेफ्टी के ऊपर ध्यान थोड़ा कम देकर हम इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन और हम अपने नंबर्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दें। हमने जो टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट की, चाहे वो चाइना से की, चाहे अमेरिका से की, चाहे यूरोप से की, उसमें हमने होमोलोगेट नहीं किया। जब कोई गाड़ियां बाहर से आती हैं तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से होमोलोगेशन होता है उसका, कि इंडियन रोड कंडीशन, इंडियन टेम्परेचर, इंडियन पॉल्यूशन, सड़कों पे पानी भरा हुआ उसके हिसाब से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस, उसकी और सब चीज़ों का होमोलोगेशन होता है। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी में हम वो नहीं देख रहे। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसको होमोलोगेट करें। इंडियन एम्बिएंट टेम्परेचर इज मच हायर कंपेयर टू द यूरोपियन एम्बिएंट टेम्परेचर्स। तो हमें उसको उसके हिसाब से थोड़ा सा ट्यून करना है, थोड़ा सा ठीक करना है। एंड एज कॉन्करेंट हम लोग भी उस टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी अग्रेसिवली लगे हुए हैं कि हम उसको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से होमोलोगेट करें। दूसरा जो पॉल्यूशन है या जो वर्किंग कंडीशंस है, जो हमारा स्किल लेवल है, हम एज अ कंट्री अभी भी बहुत हद तक स्किल डिपेंडेंट हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में जो उस इक्विपमेंट को असेंबल कर रहे हैं, उनका अपना स्किल लेवल और उनकी अपनी केयर लेवल कितना है। तो उससे ज़्यादा हमें थोड़ा सा और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ना है, सो दैट हमारे प्रोडक्ट में और हमारी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी आए। वो अभी थोड़ी सी कहीं मिसअलाइंड है, जिसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी और ज़रूरी है। और एज MSMEs, एज द इंडस्ट्री, हम लोगों की वो जिम्मेदारी है, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा और अग्रेसिवली देखें। सो जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, सेफ्टी के लिए बैटरी एनर्जी में आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें कि हम उसको टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके। सो जो बैटरी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो अगर जलता है या वो कुछ डैमेज होता है तो सबसे पहला सिम्टम होता है ओवरहीटिंग। चाहे हम पैनल की बात करें, चाहे वायर की बात करें, चाहे ट्रांसफार्मर की करें, कुछ की भी करें या बैटरी की करें, तो सबसे पहले ओवरहीटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर हम उसके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसके अलार्म्स हमारे पास आ गए,
So then we can do some preventive operations. Secondly, मैं in case there is still an accident, so then we have fire suppression technologies also, जो micro level पर equipment के अंदर हम install आज की डेट में कर सकते हैं. So इतना ज्यादा जो एक mental block है, वो block धीरे धीरे हट भी रहा है. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी पॉपुलर होती जा रही हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स काफी पॉपुलर होती जा रही हैं. एंड आई बिलीव कि विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर देखेंगे. एंड थैंक्स टू द ग्रैब 4 एंड ऑल दीज रेगुलेशंस, डीजल जनरेटर्स पे काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं. अभी ग्रैब 4 लग जाएगा और 10-15 दिन में, तो डीजल जनरेटर्स बंद हो जाएंगे. आई बिलीव दोबारा से बैटरी एनर्जी के ऊपर डिस्कशंस काफी अग्रेसिव होने वाली हैं अगले 2 महीने 3 महीने में, और अगले 2 साल में इनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ेगी. सो मैं वापस आता हूँ आपके पास. सेफ्टी के बारे में कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि अगर सेफ्टी ही वो कारण है जिसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा बैटरी रिलेटेड और इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड रेजिलेंस है अपने प्रीमाइसेस के ऊपर रखने के लिए, तो चार्जर को लेकर भी होगा, बैटरी स्वैपिंग की यूनिट्स को भी लेकर होगा. बात करते हैं सरोज जी से. सरोज जी, आप डॉक्टर एस के सरोज के बारे में 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा. ये काफी कुछ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑपरेशंस में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करते हैं. और आईफीबा, करेक्ट, आईफीबा एक एसोसिएशन है जिसको हेड भी करते हैं. ये बिजनेस के उस वर्ग की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं जिसका आगे आने वाले समय में इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए बिल्कुल ग्राउंड पर योगदान होगा. मैं भी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं शायद आपके जितना काम नहीं कर पाता अपनी अदर व्यवस्थाओं की वजह से. आपका विचार, आपका इंट्रोडक्शन, और साथ साथ मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूं इस बात पर कि कैसे देखते हैं आप ये बहुत सारे एनर्जी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उन चार्ज पॉइंट ऑपरेटर के लोकेशंस पे. इन ट्रांजिशंस को फाइनेंस के पॉलिसी से, सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कैसे ले रहे हैं लोग, और किस तरह के बिजनेस मॉडल्स बनते हुए आपको दिख रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? Thank you so much. First of all, I will thank to you. अभी जो आपने चेन्नई में किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग चेन्नई में थे और टेक्निकल ट्रायल रन मेरे बड़े भाई अभिजीत जी ने कराया वहाँ पे. ये ड्रीम हमारे पास 2 साल पहले हमारे माइंड में आया था टाटा की कार्स को लेकर, कि टाटा की कार को लेकर हम टेक्निकल ट्रायल रन करेंगे, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया. और अभिजीत जी ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उस ड्रीम को पूरा किया. और बहुत कम लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग बहुत सारे सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे जो है काम बहुत कम लोग करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके उस टेक्निकल ट्रायल रन के लिए जो अभी हो रहा है चेन्नई में तैनी यूनिवर्सिटी, एंड थैंक यू फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ एज ए एमओयू पार्टनर, आईफीबा एमओयू पार्टनर भी आपने वेलकम किया हमें. थैंक यू सो मच. और उस टेक्निकल ट्रायल रन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आईफीबा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशंस बनाने के पीछे मेन मोटिव था वो ये था कि ईवी इंडस्ट्री को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी भी तरीके की सरकार से लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए वी आर द ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट. Till now, last 3 years, we have more than 500 members, 2-wheeler manufacturers, 3-wheeler, majorly on 2-wheeler manufacturers, 3-wheeler, battery manufacturers, EV charger manufacturers, CPOS, there's lots of members we have. और उनकी प्रॉब्लम्स को हम लेकर लगातार सरकार में बात करते रहते हैं. अभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि चार्जर को लेकर, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर को लेकर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं उसमें, एंड उसमें कुछ इश्यूज अभी आ रहे हैं. दैट इज़ एक मेजर इश्यूज जो लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज़ कि सरकार अभी उसके लिए, उसको पाई करने के लिए किसी भी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर को फंड नहीं दे रही है. चार्ज पॉइंट ऑपरेटर खुद अपना फंड अरेंज कर रहा है सोर्सेस के थ्रू, बैंक के थ्रू. ये एक प्रॉब्लम जो मेजर फेसेस कर रहे हैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हमारे भाई लोग, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार उन चार्जर्स को खरीदने के लिए सरकार उनको एटलीस्ट फंड दे. दिस इज अ मेजर कंसर्न. दूसरा एक कंसर्न और आ रहा है,
दैट टैरिफ जो है वो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, अनसर्टेन टैरिफ्स है. Somebody has charging 25 rupees, somebody charging 18 rupees plus GST, somebody has 20 rupees, somebody remote location they are charging 30 rupees. There is uncertainty, इसको भी लेकर प्रॉब्लम हो रही है. एंड आई फीवर लगातार मिनिस्ट्री के टच में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार के पास जाते रहते हैं और उनको इस तरह की स्कीम्स को लाने के लिए उसमें काम करते हैं. और बहुत ही जल्द NHEB के साथ मिलकर 4 पॉइंट ऑपरेटर के साथ मिलकर हम लोग डेफिनेटली इस दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे और एक नई दिशा. बिल्कुल Thank you, sir. धन्यवाद. उम्मीद करता हूं कि आपकी डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदल सकते हैं. थैंक यू. आते हैं प्रदीप जी के पास. प्रदीप जी, मेरा आपसे इंट्रोडक्शन के अलावा एक बड़ा सवाल है. वो सवाल ये है कि इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एक हाई टेंशन पावर से एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक लाने के लिए जो लगता है, या जो हम उम्मीद करते हैं कि हर यूटिलिटी के ऊपर स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, ये सारा कुछ लगे, इसके लिए हाउ डू यू लुक एट दिस इंटायर ट्रांजिशन? ये अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज है, हम कहीं बहुत वीकनेस पे हैं, कहीं एक ट्रांजिशन जिस एम्बिशन के साथ देश चल रहा है कि हम सब 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक कर देंगे, इसके लिए जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत है, हम वाकई में जमीन पर कहाँ खड़े? गुड मॉर्निंग सर. सिन्हा साहब से ऑलमोस्ट 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ. फर्स्ट टाइम मिला था आपसे NHEB ऑफिस में, तो मुझे लगा था कुछ नया होने वाला है देश में. एंड थैंक यू कि मैं इस टीम का पार्ट हूँ आज की डेट में. और एज ए पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विद NHEB, I attended so many your programs, included this third trial. So every time मैंने देखा है कि कुछ नया उसमें आता है. इस शो में भी कुछ नया ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की भी, जिसकी वाकई में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है पहले. ओके, सो डेफिनेटली जब कोई डिमांड आती है तो डिमांड कम्स विद 2 things. One is opportunity and second is challenges. Right? So opportunity, of course, demand बढ़ती है तो there is a lot of infrastructure is required to develop and to give this opportunity to people up to in point. अभी जो कंडीशन है अपने देश की वो ये है कि अगर हम बात करें रिन्यूएबल सेगमेंट की तो अबाउट 88 गीगावाट्स टिल नाउ इट इज इंस्टॉल्ड. एंड एज पर गवर्नमेंट given this target, it is I think 500 gigawatt in within this coming 5 years, 6 years. So there is a lot of infrastructure is coming up. So जो future है इस energy segment and power equipment, electrical equipment का, ये बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें challenges जरूर आएंगे. रीज़न क्या है कि अभी जो मेजर ट्रांसमिशन है वो अंडर पावर ग्रिड के है. पावर ग्रिड का जो काम है वो एक सर्टेन लेवल तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे आते हैं तो हर स्टेट का अपना एक अलग रोल है. वो सेंट्रलाइज रोल नहीं है, चाहे वो एक लैंड एक्विजिशन हो, चाहे उसका अप्रूवल प्रोसेस हो, ये सब कुछ सभी स्टेट का अपना अलग है. तो मुझे लगता है कि यहाँ काम करने की जरूरत है. इसको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जिससे कि अगर एक कोई कंसर्न पर्सन है and he is associated with any organization like NHEB and he is sitting in Delhi and he want to install their instruments in south part, in Chennai, like in Maharashtra, in Mumbai, Nagpur, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस सेम है तो उसको इजी हो जाएगा उसको काम करने के लिए. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा है कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी कम्स थ्रू द क्वालिटी ओनली. ओके, वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, बट जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो देयर इज सर्टेन गैप्स आर देयर. लाइक द लॉस ऑफ एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, जहाँ पे कंपटीशन है. बात सब करते हैं कि वी आर जस्ट गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट, वी आर गिविंग द एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, बट एग्जैक्टली इट इज देयर. तो हम ये बात करना चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है हमारी, वो क्या एक्चुअल में वो ग्रीन एनर्जी है कि नहीं है. हम टोटल
कितना डिपेंड है अपने ग्रिड, पावर ग्रिड के ऊपर। अगर हमें इसको कहते हैं ना कि सोलर एंड विंड के साथ सिंक्रोनाइज करना है सिस्टम को, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, ये कहीं पर मतलब दिखता नहीं अभी आज के डेट में, मतलब हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि अगर हम किसी भी स्टेट में उसको जनरेट करते हैं, बिकॉज सोलर तो आप किसी भी स्टेट में जनरेट कर सकते हैं, बट विंड की एक लिमिटेशन है, वो ज़्यादातर जो है वो मतलब आउटर एरिया है इंडिया के, वहीं पर हो सकता है जहाँ पे इसको शोर एरिया बोलते हैं, सी शोर। तो अगर हम ग्रिड और ग्रिड के साथ सोलर एंड विंड को हाइब्रिड सिस्टम कर देते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है, जो कि दिन में हम जनरेट करते हैं सब सर्टेन गीगावाट, और वो शाम को क्या होता है, वो डाउन हो जाता है, तो वो जो गैप है वो हम विंड के थ्रू उसको हम कवर कर सकते हैं। तो जब हम पावर ग्रिड की बात करेंगे तो उतना उनको इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 24 आवर्स वो सेम पावर वहां से मिल रही होती है। अभी तक क्या होता था, दिन में तो हमारे पास सपोज 80 गीगावाट पावर है, बट शाम को वो 2 गीगावाट हो जाती है। मैं आपको बीच में 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। कल हमारी चर्चा रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में हो रही थी, और हमारे पुराने मित्र ब्रजेश पटेल जी थे उसमें, और NHEV के सोलर के कंपोनेंट होल्डर भी हैं, पार्टनर भी हैं। उन्होंने दिन के समय में जो सूरज का तापमान होता है, एनर्जी होती है, पूरा शाइन होता है, उसको लेकर गुजरात में चल रहे एक प्रोजेक्ट का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि दिन के समय में गुजरात का एक प्रोजेक्ट, मैं नाम भूल गया हूँ, उसमें वो सोलर प्लेट से पावर जनरेट करके वाटर को पंप करके ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, इंक्रीमेंटल होती है, और रात के समय वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है और वो हाइडल पावर था, फिर पावर जनरेट करता है। सो इस तरह की सर्कुलरिटी जो नेचुरली नेचर में एक्सेलेंट सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करती है, इसको इन्वेंट करने के लिए, इसको साथ में सिंक करने के लिए जरूरी है कि हम उन प्रोडक्ट्स को, उन टेक्निकल ट्रायल्स को करें जो आपने पिछले 60-70 सालों में नहीं किए। 2014 से पहले सरकारें आती थी, योजनाएं लागू करने की कोशिश करती थी, अनाउंस कर देती थी, इम्पैक्ट नहीं आता था। जब इम्पैक्ट असेसमेंट और ऑडिट किया जाता था तो घोटाले निकल करके आते थे, तो पता चलता था पॉलिसी गलत बन गई, इसमें लूप होल छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अब के समय में पॉलिसी मेकिंग भी पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो चुका है। आप एक बड़ा फैसला सरकारी स्तर पर लेना चाहते हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है आपको पायलट, POC, टेक्निकल ट्रायल की बाध्यता बन जाएगी। अगर आप टेक्निकल डिसीजन ले रहे हैं, वो अगर डेटा ड्रिवन नहीं है, वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बड़े डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। आई थिंक आप सब लोग इसको फील कर रहे हैं आज के समय में, और इससे फायदा जो पहुंचता है, जो फायदा हुआ है, वो ये हुआ है कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं जो आपके पास, आपके सर पे मुसीबत बनकर खड़ी थी। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ डिफिकल्टी ऑफ मोबिलिटी भी थी। ईज ऑफ मोबिलिटी को अगर आप देखें तो आपके टोल प्लाजा कुछ समय पहले लाए गए। अब टोल प्लाजा को हम GNSS, खासकर इज देयर समथिंग इंपॉर्टेंट, टोल प्लाजा एंड सब को अभी हटा करके GNSS को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके टोल प्लाजा पर जो लंबी कतार खड़ी है, वो क्या है? लॉस ऑफ GDP है, लॉस ऑफ मोबिलिटी है। आप शहरों में घुसने जाते हैं, आप जाम में फंस जाते हैं। एक इंटरसिटी ट्रांजिशन में आपको उतना समय नहीं लगता है जितना समय आपको शहर में घुसने और निकलने में लग जाता है। तो आप कितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, So it means we are going with both free. हाँ, टोल प्लाजा सारे हटने वाले हैं। अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आने के बाद आपके पास वो फ्रीडम होगा कि आप बिना टोल पर रुके अपना टोल पे कर सकते हैं। इसका पायलट ऑलरेडी मानेसर में और गुजरात में चल रहा है। तो इन चीजों को बनाने के पीछे, करने के पीछे सबसे बड़ी जरूरत ये है कि आपको एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी में, जहां पॉलिसी मेकिंग का डीप डेप्थ
एक डेमोक्रेटाइजेशन होना जरूरी है, वो पूरा किया जा सके, वो माध्यम बने, वो एक इन्वायरमेंट बने। और सही कहा आपने कि कैसे पूरा करना है उसको बिना पायलट किए करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं, संभव ही नहीं। तो सौरभ आपके पास आते हैं। आपके पास वो चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, डेटा। हर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, हर एनर्जी एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो मोबिलिटी हो या स्टेशन हो, उन सब के ऊपर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उनको ढूंढना, बुक करना, वहां चार्ज करना, बैटरी लेना, ये सारा कुछ बहुत सारा डेटा प्ले क्रिएट करता है। आप डेटा, नेटवर्क और कनेक्टिविटी का क्या रोल देखते हो इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए? क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देती हैं? First of all, I would like to thank Mr. Abhijit Sinha ji to give us the opportunity to work with for National Highway for EVs. Small introduction about myself. I am the Vice President of TechMind, working on the strategy and solutions. TechMind is a digital technology company. We are 17 years into the industry, and we are working as the innovation partners for our customers, where we are involved right from the ideation phase to design, development, maintenance, and then further extension and modernization. Of these 17 years, we have been working for 12 years into e-mobility, and journey started in 2010-11 when clean IT was the buzzword, where what all today we are discussing, the renewable energies, was taken into consideration for charging these chargers and the batteries. We were the first ones to implement the protocol OCPP for the charge station management system, which was way back in OCPP 1.5, and then we are working on the latest, that is 2.0.1. We were the first ones on the energy side to implement pilots on smart charging. We are the first ones to implement wireless charging, which is on induction and dynamic induction and static induction. And we are the first ones to integrate end to end. If we talk from now coming to the point about data points, so it starts from the energy side, where we have on one side grid, but when it comes to renewable, you have distributed energy resources, which also comprises of wind, solar, and other forms of energy. And this terms is integrated into the grid, which has energy storage systems also. And when these utilities come as a second point, when they are integrated with these terms, they have various demand response programs to take care of the load that comes on the grid when immediately at the evening all the vehicles are getting charged. And here is where the next point comes, the network infra, the availability of the chargers, the utilization of the chargers. Here is where the data starts growing. And here is where the driver wants to know whether the charger is available or not. The OEM wants to know how the performance of their chargers is working. So we implemented the charge station management system. So that's the next dot that gets connected. And then after that comes the interoperability, where it's not just one network, but there are many CPOs who have the network. Again, sharing the data, the availability of the data, the availability of the network comes as the next play. And then further to that comes the other business applications like fleet management system, battery swapping. So if you see end to end, all of these dots are being connected through a software system. Through at the foundation level, it's the various protocols, the infrastructure setup, and the most important point, connecting all the dots of my peers in the panel, is where the crucial part is the operations and monitoring of this infra. So as Mr. Goel mentioned, what is the main challenge that we face? On the network side, we want to know, first of all, is what comes as the descriptive analytics, where you become aware that where the fault has happened. You become aware that which source of energy is required now. Is it the solar that I should take, or is it I should purchase from the grid? So that becomes your first point of the data, which is called as descriptive analytics. Second comes, again, if we focus more on the network side, the failures and of that, comes the diagnostics.
that why the fault has happened, what is the root cause of this fault. So all those things the software starts capturing and presents. The third most important point comes is now the predictive analytics. As Mr. Goel mentioned, that the temperature of this charger is increasing. Why it is increasing? The utilization of the charger is increasing. Why it is increasing? Because it is at a location where maximum vehicles are there. On the other side, on the analytics, you find that there is a charger whose utilization is less. Why the utilization is less? Its performance is low. So these are the dots where the network summarization of the faults that is happening, the predictive analytics comes into play. And the fourth point, which is important now, is which all the infra providers and the energy providers need is give us the prescriptive analytics. Prescribe that what should be done now. So these are, if standard things are happening, you don't need to always go into a root cause analysis. The system should come and prescribe to the maintenance person, to the management, to the OEM, that these are the things that you need to take care. And the latest thing, which is going on in a big way in the industry, is generative AI. Now all the business houses need that you give us the summarization, give us the analysis that why this problem has happened, how to solve this, and ensure that the usability aspect is the maximum. So to Right. summarize, this is where the software, the data analytics plays a backbone, is a vital role that it plays in the software side. Thank you. Thank you. I think you've given a good comprehensive outlay of where we are heading in terms of data and what is it expected from this new oil called data in terms of taking informative decisions for response management and also predictive strategies which we may look forward to look into it. Now I'm asking a last question of the panel. All of you, same question. It is bit long but bit frustrating. We all have to go through this frustration if you want to achieve something. Our Prime Minister had a wish 8 years back to have a governance system which is presence-less, paperless and cashless. This we could do now through UPI, DPI and NPI. When are we going to have his another wish completed to have a mobility which is common, connected, convenient, congestion-free, charged, clean and cutting edge? I'm quoting him from the Move Summit Vigyan Bhavan 2018 when he said my next generation of mobility should be common, connected, convenient, congestion-free, charged, clean and cutting edge. Why I am quoting these two together is because in last 10 years we have seen an unprecedented transformation of digital infrastructure in India. You are sitting here into battery show of Renewable Energy Expo. Even our solar targets were completed, national solar targets were completed before time. Why and when we will see this transformation in India into electric mobility, particularly? Why we are not making that jump that in data consumption India has done into 2015? I don't know how many of you will remember in 2015, Prime Minister 15-16, he inaugurated a very ambitious project called Digital India. Can you imagine the India's rank, global ranking of data consumption at that time is 126. In next 6 years, what would be India's data consumption global ranking after coming of Digital India? It's number 1. We are number 1 in data consumption globally. We are number 1 and the cheapest after Israel. If I can quote is France 0, I'm quoting into $0.23. Italy $0.12, France $0.23, Bangladesh $0.32, Pakistan $0.36, Turkey $3.9, China $0.41, Denmark $0.43, Israel $0.04 and India $0.17. This is the cheapest globally data available per GB. And if I count rupees 199 rupees wala jo plan hai, which gives you 28 days charge and per day 20 GB, then it will cost you more, not less than $0.07 per GB in India. So this sort of transformation we have seen in digitization,
today half of the world transaction, online transaction that happens is happening in India. Till 2070, you are going to be the youngest planet as per your demography. You conduct largest election in the world. More than 26 countries came to India just to see the process of election. And I'm sorry to say the US election, which is now going to come up, has, I think, more than 5 states has declared that there is no ID card will be checked. What kind of election it would be? We link Aadhaar 5 years back, and today, still till date, they're saying there is open mail votes you can send without having an identity. It is a global debate right now that their digital infrastructure of counting people, identifying people is far less than India's capability today. So this level of transformation we have seen into many other sectors. Why it is not happening into electric mobility and particularly in the energy infrastructure sector? That's my loaded, calibrated question to all of you. But answer you will have to give me in the bottom line of maybe 1 or 2 minutes, looking at the watch. Very pointed and very important. Be open, be vocal. Go ahead with you. So, am I audible? Before I answer the question, I think you forgot one very important achievement of India, which was the COVID protocols and the COVID vaccination certificates. So we were the only country who was successfully doing it online. So I think Digital India is really robust and alive and kicking. As far as the question about mobility is concerned, I believe the major roadblock currently is the cost, which probably Mr. Gadkari has already announced that yes, the cost will come down and they will be at par with the ICE vehicles, combustion engine vehicles. So I believe that is one major roadblock which India has. The advantage that India had for Digital India was the cost. As you rightly said, that we are now amongst the cheapest per GB data cost. So I believe per kilowatt battery cost has to come down. And with the huge numbers that we have, we are now the most populous country in the world. So we always are, the biggest disadvantage that India had till about say 10-15 years back was the huge population. And currently with the new world, that is our biggest advantage. We are the largest market in the world. I wish your dream come true, that we have cheapest battery globally in India. Sir, So that we transition can will go have, ahead. there is no doubt about it. Within the next 5 years, we'll be the cheapest Big round of batteries. applause for this. If this happens, then we are going to be #1 into having battery. No matter it comes from Kashmir or it comes from some other Wherever, even if it is coming from China, we would still be the cheapest. I am telling you that because we are the largest market. People have to come and cater to us. place. Right. Sarojji, your 2 lines on this. सर इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए एसोसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मेरी रिक्वेस्ट है सभी एसोसिएशन से, लाइक बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, फिक्की है, सीआई है, एसोचैम है, एनएचईवी है, आईफीवा है, इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आ जाते हैं और कोई ऐसी कोशिश करता है ये सारे कॉमन प्लेटफॉर्म में, व्हाट हैपन आज की डेट में हो क्या रहा है, सीआई एक एजेंडा लेके जाता है, फिर उसके पीछे दूसरे जाते हैं, हम एक एजेंडा लेके अलग जाते हैं, एनएचईवी जाता है, सब एफर्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि सेम एजेंडा के लिए मैं भी गया हूँ और एनएचवी भी गया हो, सीआई भी गया हो और एसोचैम भी गया हो, सेम एजेंडा को लेके. अगर हम लोग कलेक्टिवली अप्रोच करें तो इस ईवी इंडस्ट्री का बहुत जल्दी जो है ग्रो हो सकता है, स्केल अप हो सकता है, पॉलिसी बहुत फाइन ट्यून हो सकती है. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. So थैंक यू सो मच. your wish is policy should be participative and inclusive for Yes. industry to decide next generation of industrialization. Yes. Thank you. Very, very important. My point is, Sudhir, Pradeep ji, your 2 important points. yes. See, we have done lot of things in last 10 years or 15 years. Okay. मेरा कंसर्न है कि जहाँ पर भी जो गैप्स आ रहे हैं ना, गैप्स, उन पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो गैप्स आगे चल के बहुत बड़े होने वाले हैं, क्योंकि वी आर गोइंग ऑन ब्रॉडली बेसिस. ओके. तो as a industry expert, because I am not expert for our industry, but if I talk about the power and electrical industry, okay, हमारी इंडस्ट्री में एक BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये बहुत अच्छा प्ले करता है रोल अपना.
सो ये क्या करता है कि एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में काम आता है। अब उस स्टैंडर्डाइजेशन को लागू करना प्लेटफॉर्म पे, मतलब कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, वो अभी बहुत बाकी है। सेम प्रोडक्ट इन द प्राइस ऑफ इन क्वालिटी ऑफ, मतलब 0 to 100 इतना भी गैप है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से BIS को एक तो कहना चाहूँगा कि टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस क्वालिटी। अभी मैं कल ओमान में बहुत कुछ बिजनेसमैन के साथ मीट में था। टुडे इवन आई केम फ्रॉम देयर ओनली। सर, हमारे इंडिया में प्रोडक्ट की जो वारंटी है मैक्सिमम कितने ईयर्स है? यू जस्ट टेल मी, कितने साल है यहाँ पे 2 से 3 साल, वारंटी? एक से 2 साल हो गई है ज्यादातर। दे आर आस्किंग 25 years. Oman ministry asking 25 years warranty product, and China is giving. So, अब see, if we talk about the 25 years warranty, the quality of product, what do you think? Very, very important point. That is, I think now India has started the quality Yeah, initiative. and I signed this memorandum, and I am giving to the 25 years warranty. And I will show this the platform into this Ilakrama, which is coming in January. What Okay. an energy and confidence. Right. We must have a big round of applause. Somebody signed 25 years of warranty on an Indian product. Yeah. Great. So it means Congratulations. lifetime warranty I am giving, because you are talking about solar. Solar is they said कि हमारा जो पैनल है 25 साल इसकी लाइफ है, कहते हैं ना, if life है उसकी 25 साल, तो why you are not giving warranty for 25 years? True, true. Very Okay. important point. Yes. If my transformer, I manufacturer of transformer, if the life of transformer is 35 years, Well taken. Okay. Any other I point am you ready want to to give add? 25 years warranty. हाँ, that is okay कि maintenance to be done as per my guidance. Whether you give us, Understood. Anything Okay. else you want to add, or only one point? Yeah. One. Okay. तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं, वारंटी पीरियड, जैसे भी MV Venal is the UP, yes, increase 10 years. Dipti, it's a 10 years ना? It's a 10 years they are asking warranty. Pradeep ji, I understood your point. Is there anything else you want to add? और कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक ही पॉइंट रखना चाहते सर, मेरा कंसर्न ये है जी। कि जो हम स्टेबिलिटी एंड की बात करते हैं, स्टेबिलिटी विल कम्स विद द क्वालिटी हैं? ओनली। Quality. Absolutely Only. true. Okay, and there is certain organizations in India who's doing this, उनका ऑब्जर्वेशन है। Quality Council of India is Quality now Council, doing a yes. wonderful campaign. I will come back to each one of you in Yes. my closing वो remarks. अपना एक रोल बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। Let me take one last note from Please, Saurabh. Saurabh. Saurabh, go ahead. Your 2 cents to the discussion. Yeah, so I have two very focused points. One is on the infra side, I feel that the DERMS and the demand response management system on the generation side, these should soon get adopted at large scale across the country, because here is where your renewable energy comes into the mainstream. So that is point number one. Point number two is that if you see, pollution is done by maximum whom? It's not the passenger vehicles, the cars that we are, driving, anyone who has a car at home. We saw that last mile connectivity, the e-rickshaws, the three-wheelers, they have, done a fabulous job, all of them on electrification. The second is, the pollution is maximum, if we all agree, we see the trucks, heavy duty trucks, the medium sized trucks, we all know packers and movers, we know all those medium sized vehicles which we see on the road which are transporting goods. So I see that if this set of vehicles which are which are into the logistics industry, if they are now on the EV side, then it will be a big leap. Buses, it has already started. Government has given huge initiatives. PM your drive is there. recommendation is Yeah. that it should go also include trucking. correct? Yes, yes, Understood. and that's the major, one of the major reasons for Major pollution. source of pollution. Yes, So yes. with this we have reached to the end of our conversation. We may not be allowed to take more than one question, but before you decide your question, you have to raise your hand so that somebody can pass a microphone to you. I would just like to stitch together what my eminent speakers has said in the little bit context of what we have managed to do as of now. I'm quoting from Bharat. Bharat said there is a requirement of a product which is cheapest in the world yet very good in quality, and that is what our national ambition to achieve in battery. I'm 100% with you. 10 years back when we started this conversation, I left my highest well-paid job to join then Chief Minister, now Prime Minister, to
be conceptualizing this thought process of why a new technology in India is coming and facing hiccups, bumpy roads. So this landing of a new technology, which is an emerging technology, which might be a battery, which might be hydrogen, which might be anything, is now has been curated in a very significant mode with Invest India and ease of doing business. Second quote, that very important thing which Saroj said is policy has to be democratized. All organizations has to come together, sit together, deliberate together to decide upon it, that how India has to go forward. And I'm glad to share with you that the ease of doing business does not only remain in the premises of the government, but it has all 5 facade, one department, one wing that reside with DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, one that resides with FICCI, CII, SOCHM, and many other industrial organizations. And both of them, they do a lot of work on the conversation, narrative, debate, survey, seminar. They don't do pilots. So this ease of doing business, which you are seeing in the screen, this only focusedly does emerging technology pilots and brings those data so that you can take informative decision. And recently what we have done on NHEV has completely changed Indian way of looking at electric mobility in India, way of looking at subsidies and way of looking at budgeting for this. So this is now changing. Pradeep given a very good concept that quality is the core. Quality Council of India in next 10 years is going to create the quality campaign, the quality for Bharat. And this campaign is not about make in India. This campaign is about made in India. Anything which you have created, exported, will be treated with an urgency, with an importance of warranty, and also in possible interactions, like the way Japan has branded 20 years back, that something made in Japan was to be very, very important. And last but not least, what he said is the trucking. Trucking is something which we have brought on a very good note. Recently, Principal Scientific Advisor to Prime Minister has given trucking a go-ahead recommendation to be included into PM E-Drive. FAME 1 and FAME 2 has, as you know, has discontinued as a scheme for subsidy, and for trucking, PM E-Drive has announced 500 crore rupees focused on the electric trucking. Along with this, ease of doing business has also opened an instrument equivalent of the PPP mode, 500 crore INR. These two together are now today 1000 crore rupees for only electric trucking. With this, thank you very much, ladies and gentlemen, for being wonderful audience. I'm running short of time. It depends on the beautiful lady that she'll allow 1 or 2 questions or not. Please, Thank you. please. If anyone wants to ask any questions, Anshika, mic dekhe aao unko. The discussion is so interesting. I was so engrossed. I would want to hear more. If I had the choice, I would have let it go on for another hour. थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का Please, अपॉर्चुनिटी please मिला और identify your. मेरा नाम आइनुद्दीन शेख है और मैं एक इन्वेंशन के ऊपर काम भी कर रहा हूँ रेट्रोफिटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मार्केट में से जो डाटा मिला जो आपका सवाल पूछिए, आपका सवाल पूछिए। चार्जिंग सेक्टर का मतलब जो विस्तार नहीं हो पाना इसका पीछे 2 कारण है एक कारण तो बजट है फंडिंग और दूसरी नंबर बात सर प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैं दोनों को नहीं observations बात बोलेंगे करेंगे। दोनों नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा तो दूसरे नंबर का कारण है कि हम जो फंड लगाते हैं उसी हिसाब से उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा तो उसको मतलब ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं उसके ऊपर अगर काम हो जाए तो लगता है हम सब क्या कुछ कर रहे हैं। ये आपने 5 साल पुराना सवाल पूछ दिया। नहीं 5 साल तो लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रॉफिटेबल नहीं थी इंडिया में। आज की डेट में एक प्रोजेक्ट है जिसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रॉफिटेबल बनाकर दिखा दिया है। आपकी ब्रेक इवन हो, यूटिलाइजेशन हो, डे पर यूज हो, आपका मोबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, उसका रिटर्न हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। गो टू nhev.in। ये 5 साल पुराना सवाल पूछ रहे हो, पहले ट्रायल का सवाल पूछ रहे हो। आज तो हम ट्रक की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम बस कर चुके हैं, इंटरसिटी कैब्स कर चुके हैं। प्लीज गो ऑन द वेबसाइट। आई थिंक अगेन हम लोग पीछे मतलब Also one ये सवाल है। One second. Actually, we have non-Indians also in the audience. I love my language, but they will not be able to understand what we are saying. So,
Humble request, please stick to the language English so even they can understand what we are Sure. talking about. Any, Thank you. One more question lady has to ask. Yeah, Quickly. yeah. Please Anshika? give her the microphone. Varnika wants it at the end. Hi, thank you so much for the panel discussion. I'm Varnika, Battery Research Analyst at Promotion. I want to know what can India do to become independent in battery manufacturing? Just any views on that? I could not hear your question. Varnika, you have to be louder. What can India do to become self-independent for battery manufacturing? Battery manufacturing self-dependency you are asking. आप में से बहुत सारे लोग दे सकते हैं जवाब. Hello. Currently, what happened? Lead-acid batteries, lots of manufacturers are doing already. But as far as concern of lithium and battery, we have a constraint because in India, lithium cells are not manufactured. So we are importing we are dependent on other countries. But we have got the lithium sources from Jammu and Odisha, and government has already done this tendering process and all for refining and all. After few years, 2 or 3 years, maybe we having our own lithium cells. It will take 2 or 3 years for lithium cell manufacturing. And what Varnika, about I am not a tech expert, but from the economic point of view, I would like to give you one answer to it. India right now is not having sufficient battery, particularly lithium ion. In near future, in next 5 years, we are going to have some reservoirs which has been found recently, but still we will not be able to have sufficient ingrown home ground batteries. We are not going to be self-dependent. What we are going to do is what you need to know. We are going to reduce the size of battery in the vehicle by giving vehicle a connectivity from the pantograph line on the top or maybe on the road rail so that the size can be reduced. Wireless in the size can be reduced, and a small battery pack serves you for at least 60 meters off the grid. So when you are discharged, you can go on the track, get yourself charged for 20-30 kilometers. Then for 60 kilometers, you can go without charging. But So I this think is- that sodium ion cell is also in the lots of research is going on. Still, we will, Yeah. without lithium, you cannot have a battery which is of this power for mobility, and lithium is not our forte. We are looking into a possibility to finalize this supply chain management and declare that lithium is good for us, but for a limited uses. It is not possible to go for the trucking. Trucking might go on the hydrogen. Okay, Sir, thank I think उसका जो सवाल था that was more on what can India do better to become a manufacturing hub. I think focus जो पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया पे रहा है, अब टाइम है कि हम फोकस करें रिसर्च इन इंडिया. That's So true, from that's youngsters like you, we want you people to get into research and development. मेक इन इंडिया चल रहा है, वो हमारी जनरेशन चला रही है. अब आपको रिसर्च इन इंडिया लेके आना है. No, that's what I wanted to know. Thank you so much. Thank you. Battery actually is coming up in the super conductor and microgrid segment. तो वो एक अभी challenges चल रहा है, अभी R&D में है वो. Definitely वो 1-2 महीने के अंदर आने वाला है, वो भी इंडिया में. तो and this first plant is coming in Kochi. तो जल्दी आपको रिपोर्ट मिलेगी इसकी. Thank you, ladies and Thank gentlemen. you. I hope we have taken all questions. Nothing left. Yeah. Thank you. Have a great day, great evening. Thank you for being wonderful, patient listeners. Thank you so much. That was a very insightful, knowledgeable, and I'm definitely feeling intellectually more enriched by what all I heard here today. And I'm feeling very inspired and hopeful also. I personally live in a society in Noida, and I am thinking of buying an electric vehicle, but charging port is a challenge. So when you were talking about it, I said yes, because we have parkings in the basement, so we need to be able to have chargers there so that our vehicles can charge overnight. So now after hearing I am feeling so inspired about talking in Hindi, but I'm going to remember that we have audiences who are non-Indian. So, but I'm feeling so inspired and hopeful that hopefully next year, I think I'll buy an electric vehicle with a charger in my parking. So, thanking all the panelists and our esteemed moderator once again. And as a token of our appreciation, we would like you all to please be seated for a few more minutes. And I would request Mr. Abhijit Sinha to please come forward to present mementos to all the panelists on our behalf. So the first panelist that I would like to call forward
is Mr. Saurabh Verma, who's the Vice President, Sameen Techmins India. Please make sure that you get your photographs properly clicked. These are memories, so please smile for the camera. The second panelist that we are felicitating is Mr. Pradeep Kumar Verma, Managing Director, Accord Transformer and Switchgear Private Limited. The next panelist that I would like to call forward is Mr. Bharat Goyal, who's the CEO, Concurrent. And last but definitely not the least, our final panelist, Dr. S.K. Saroj, Chairman, International Federation of Electric Vehicle Association. Finally, I would request everyone to please step forward at the front of the stage so that we can capture this moment with you all in one frame as a group.